Hello students, I am hoping that you all are safe and fine. Now it's a more crucial time than before, as before the lockdown was going on, everybody was inside their homes, but now the we got some relief from the lockdown and we have to be more careful now. So students, be careful, be safe at home, do not roam here and there for unnecessary work, move out of the house if it is very important, otherwise be at your home only. So yes, yesterday we were discussing about our topic pH. We discussed about pH. Now move on to the salts topic, which is the last topic of the chapter 2, acids, bases and salt. So yes, today we are going to start with our last topic, that is salts. So yes, salt. As we hear the term salt, one white color substance come in our mind, which generally put on the chips, which generally we add in our food to make it flavorful, to make it tasty. So yes, no, it is just one of the type of the salt, and salts are more than that. Many kinds of salts are there which are used in different fields. The salt which we are using on the chips, which we are using in our kitchen, is a type of a salt which is known as common salt. Otherwise we are having many more salts around, which we are going to discuss in our this topic. So yes, first of all, salts are made up of what? Actually salts are made up of acids and bases, which we discussed in our neutralization reaction. So yes, this is a correlation between our previous work and today's work. So yes, acids and base combines together to form salts and water. We can take any acid and we can take any base. The positive part of the base and negative part of the acid combines together to form a salt. And this is a common salt which we are discussing about, the presence on the chips present in our kitchen. So it is one of the type of the salt. It is known as common salt. And water. So here we can see that it is made up of two parts. One is positive part, one is negative part. It is formed from acid and base. And its positive part is come from, positive part is Na positive, negative part is Cl negative. Positive part came from base. So it is a basic radical. Radical, any kind of ion is known as radical. It is basic radical because it is positive in nature and come from a base or a metal. So yes, it is a basic radical and it is an acidic radical. Yes, acidic radical come from an acid, basic radical come from a metal, except ammonium ion. Ammonium ion is not the ion we are getting from the metals. So this is a salt. Okay. So yes, salt is a substance formed by the acid and base. So yes, salt, what are the properties of the salt? As it is formed by the ions, so it is an ionic compound. As it is formed with the help of the ion, it is an ionic compound, and that's why it can conduct electricity in the solution form, because if we are adding this sodium chloride in water, then it dissociates into its constituents ions, which are electrolytes, and electrolytes help in the conduction of electricity. So that's why the salt, any kind of salt in water in solution, can conduct electricity. Now next property is it is solid. Next property is this only, conduct electricity. It can conduct electricity. And last property is it is usually solid in nature. Salts are generally solid in nature. As we can see, the common salt which are present in our kitchen, it is solid crystal. It is present in the crystal form. So yes, they are generally solid in nature. Now next topic is family of the salt. Family of salt means by which kind of ions it is formed of. Like
we can define that the salt having the same positive ions or the negative ions are said to belong to the same family. If two salts are having the same positive ion or maybe same negative ion, that means they are belonging to the same family. So on the basis of that, how we can define the family of the salt? Like I am having many salt, I am just writing the compounds names. Sodium chloride, I will write here. Sodium chloride, sodium sulfate, potassium carbonate, ammonium chloride. Like I am having these many ions, these many salts, sorry. So yes, what are the formula of these salts? So here we are going to write the formula of these particular salts. Sodium chloride is nothing, it is NaCl. Sodium sulfate is Na2SO4. Yes, you know how to make the formula. I told you many times in 10th class too, and in 9th class we practiced how to form the chemical formula of any compound. You know that, and you can practice it at home. Next is potassium carbonate, K2CO3, and ammonium chloride is NH4Cl. These are the formula of this salt. Now their constituents acids and base, from which acid and base they are actually formed up of. So yes, while writing the acids and bases, nothing to do. Always and always with the positive ion write OH part of the, like I did the reaction before. So write the positive part, with the positive part write the OH part of the water, and with the negative part add the H plus part of the water. So yes, we can make our acids and base accordingly. Like it is made up of, we can write here like base and acid, base and acid. Base will be NaOH and acid will be HCl. So it is its constituent acid and base. Next one is again NaOH and H2SO4, KOH and H2CO3, NH4OH and HCl. So these are the names of these are the acids and bases from which actually these salts are made up of. So abhi how many families are here? So how we can find out the number of families present in these particular salts? So yes, here sodium, nowhere else sodium is present. So yes, one family is of sodium. One family is of sodium. Okay. Next one we will see potassium. Second family. Third family is ammonium. Fourth family is chloride. Okay. So we will count it as one number only. Fifth is sulfate and sixth is carbonate. Yes बेटा, जितने भी नेम्स प्रेजेंट है या तो पॉजिटिव आयंस के हो सकते हैं या तो नेगेटिव आयंस के हो सकते हैं, वो सारी एक एक फैमिली है. लेकिन हाँ, अगर एक आयन कोई भी 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम 1 ही काउंट करते हैं. तो इन टोटलिटी हाउ मेनी फैमिलीज आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस? 6 families are present. So yes, 6 salt family are present in this particular case because 6 different types of ions are present in these salts. So इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आता है कि how many types of families are there in this particular case. Now if they have written one formula of any of the salt, then they can ask from which base and acid actually it is made up of. तो nothing to do, पॉजिटिव पार्ट के साथ OH लगा दो, नेगेटिव पार्ट के साथ H लगा दो, आपका एसिड और बेस रेडी हो गया. सो बाय दिस काइंड ऑफ थिंग वी कैन फाइंड आउट द फैमिलीज ऑफ द सोल्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज the pH of the salt solution. Yes beta,
when we are talking about salt, it is as it is made up of this acids and bases, we are thinking so salts are always neutral in nature, but this is not the case. Salts are not always neutral in nature. They can be acidic, they can be basic, they can be neutral. So one by one we are going to discuss all the cases. Now students, our next topic is pH of the salt solution. Actually, when we are talking about the salt, always and always we think that salt should be neutral in nature, but this is not the case. This is not always being. So salts can be of acidic, basic and neutral nature. Salts acidic भी हो सकते हैं, basic भी हो सकते हैं, neutral भी हो सकते हैं. How we can find out कि salt is acidic, basic or neutral? Actually, we can find out the basic nature, the nature of the salt on the basis of their hydrolysis in case of the water. So yes, we are going to discuss different cases, and then we will discuss about what are the nature actually of the particular salt. First one case is when the salt is made up of strong acid and strong base. Yes, when the salt is made up of strong acid and strong base, तो ये strong base like NaOH, strong acid like HCl, so these two will form NaCl as a salt and water will release. So in this case, as this salt is made up of strong acid and strong base, both are strong. Strong means what? We discussed in the beginning of this chapter that strong acid means the kind of acid which can dissociate completely in the presence of water. So that means it completely dissociate to form H plus ion, and again it is a strong base, so it will dissociate completely in the presence of water and give OH negative ion. So almost the H plus ion concentration and OH negative ion concentration remains the same, and hence the particular kind of salt is neutral in nature and having pH is 7. So yes, when a salt is made up of strong acid and strong base, it is generally neutral, and इसका pH जो है वो 7 होता है. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल होती है. लेकिन ये हर केस में नहीं होता. अभी हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, दैट इज व्हेन द सॉल्ट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से अगर कोई भी हमारे पास सॉल्ट बना है तो उसका नेचर कैसा होगा? वीक बेस लाइक मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड अगेन मैंने HCl ही ले लिया, तो इससे मेरे पास कौन सा सॉल्ट बनेगा? इससे मेरे पास सॉल्ट बनेगा NH4Cl प्लस वाटर. तो ये जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है लेकिन वीक बेस से बना. अमोनियम इज अ वीक बेस. ठीक है, ये एग्जांपल हो सकता है. यहाँ पर भी हमारे पास और एग्जांपल हो सकते हैं. KCl हो सकता है, Na2SO4 हो सकता है. ये सारे के सारे सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए हैं. ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है. इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा हमारे पास कि ये इसका pH जो है वो कम होगा. अब pH कितना होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है. अभी हम डिस्कस करते हैं इसका रीजन. इस केस में क्या है, एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, so that's why it can dissociates completely in the presence of water. ये completely dissociates होगा और बहुत सारे हमारे पास हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे. But as this ammonium hydroxide is a weak base, so it will not completely dissociates in water. So that means the concentration of OH negative ion is much less than the hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इस केस में बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड आयन से. क्यों? क्योंकि ये वीक बेस है, पूरा डिसोसिएट्स नहीं हो सकता है पानी के अंदर. दैट मीन्स हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्ट बनेगा ये क्या होगा? स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. ये वाला जो सोल्ट है ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल नहीं है. तो इसका pH जो है वो लेस देन 7 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको पता है मोर इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लेस इज द pH. ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हमने कल ही के टॉपिक में ही किया है. सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास सोल्ट होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा
वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन से कहीं ज्यादा होंगी और पीएच इसका लेस देन 7 होगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस, व्हेन अ सोल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस से बना है और वीक एसिड से बना है, तब क्या होगा? इस केस में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हम ले सकते हैं NaOH मैंने ले लिया, और वीक एसिड मैंने कार्बोनिक एसिड ले लिया। ठीक है, इससे जो मेरे पास अब जो बनेगा सोल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये वाला सोल्ट बन गया। अब ये कैसा नेचर का होगा? यहाँ पे आपको पता है कि एज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इट विल कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, एज इट इज अ वीक एसिड, तो एज इट इज एन वीक एसिड, तो इट विल नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट्स इन वाटर एंड गिव्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज वेरी मोर या much more than the hydrogen ion concentration. That's why these kind of salts are generally basic in nature. ये जो सोल्ट होंगे ये बेसिक नेचर के होंगे और इनका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा। सो यस, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रीजन आपको दिमाग में रखना है। रीजन अगर आपको आता है तो आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना कंसेप्ट लगाओगे और आंसर दे दोगे। क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं पता कि डायरेक्ट आएगा इनडायरेक्ट आएगा, उसके लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सिर्फ ये आंसर्स जो हमें मिलते हैं, पीएच का जो आंसर मिलता है, ये हमें मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, कि वो पानी में कैसे टूटता है उसके बेसिस पे हमें आंसर मिलते हैं। ठीक है, आपके बुक में ये तीनों ही हैं। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज व्हेन अ सोल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वीक एसिड एंड वीक बेस। अगर ये वीक एसिड और वीक बेस का बना हुआ है तो क्या होगा? वीक एसिड, वीक बेस मैंने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक एसिड मैंने ले लिया कार्बोनिक एसिड। तो यहां से जो मेरे पास सोल्ट बनेगा दैट इज NH4CO3, ये मेरे पास सोल्ट बनेगा। एंड दिस सोल्ट इज अगेन ऑलमोस्ट न्यूट्रल इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये भी थोड़ा सा टूट के थोड़े से हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा, ये भी थोड़ा सा टूट के थोड़े से हाइड्रोजन आयन बनाएगा, तो इसलिए दोनों ही थोड़े थोड़े डिसोसिएट होंगे और H+ आयन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल इन नेचर एंड पीएच अगेन इज अराउंड 7। तो यस, वीक एसिड और वीक बेस के जो सोल्ट हैं वो जनरली हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सोल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अदरवाइज हमारे पास एसिडिक और बेसिक सोल्ट्स भी होते हैं। सो यस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सोल्ट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि नॉट ऑलवेज सोल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर, दे कैन बी एसिडिक, दे कैन बी बेसिक टू। Yes students, now we are going to discuss different kinds of salts one by one. So our first salt is sodium chloride or common salt. If any kind of question will be there, then I am expecting the chemical name and chemical formula both with the answers. Okay, so yes, you should always keep in habit to write the chemical name and the formula both in any kind of answer. So yes, common salt, its chemical name is sodium chloride and chemical formula is sodium NaCl. Just now we have discussed ki how the sodium chloride is formed. It is a salt formed from the strong acid and strong base, so it is neutral in nature. ये क्योंकि ये सोल्ट जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, तो ये न्यूट्रल है जिसका पीएच 7 होता है, जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है अकरेंस। ये कहाँ पर हमें मिलता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड हम लेबोरेटरी में बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू, हम उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो रिस्क है हमारे पास कि एसिड को हम उसमें यूज कर रहे हैं, बेस को यूज कर रहे हैं, अगर वो इक्विमोलर अमाउंट में ना हुआ तो इट कैन किल अस। सेकेंड क्या है कि अकरेंस, we are getting sodium chloride from many of the sources, and why we are expend our money to form the same kind of salt in the laboratory. अगर हमें यही सारा का सारा सोल्ट मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो हम लेबोरेटरी में क्यों बनाएंगे? That's why we are generally not form this common salt in the laboratory on a large scale.
तो हमें ये मिलता है कहाँ से, सी वाटर से। सी वाटर में बेसिकली क्या है कि अराउंड 3.5% सोल्यूबल सोल्ट है। टोटल मिला के जितने भी उसमें सोल्ट है, इम्प्योरिटी और सब कुछ मिला के उसमें 3.5% सोल्यूबल सोल्ट है, आउट ऑफ विच 2.7 to 2.9% सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन द सी वाटर। 2.7 से 2.9 तो सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही है, बाकी सारी की सारी क्या है, इम्प्योरिटी है। तो ये हमें सी वाटर से मिल जाता है। ये सेलिन वाटर जो आइलैंड के आसपास मिलता है वहां से मिल जाता है। ये हमें रॉक सोल्ट की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। नाउ अब आता है कि एक्सट्रैक्शन, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सी वाटर। क्योंकि सी वाटर में है, हम डायरेक्ट तो नमक उठा के खा नहीं लेंगे, हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस salt from the sea water? Actually, extraction is very easy procedure. We just have to evaporate the water from the salt. हम क्या है, उसे बड़े बड़े हम एरियाज बना के उसमें पानी को रख देते हैं। आफ्टर सनलाइट, आफ्टर गेटिंग द सनलाइट, द वाटर विल इवेपोरेट आउट एंड रेस्ट बिहाइंड इज सोल्ट। तो इस तरह से पानी उड़ जाता है और हमारे पास क्या है, सोल्ट मिल जाता है। बट वन प्रॉब्लम इज देयर, द सोल्ट विच वी आर गेटिंग बाय दिस प्रोसेस इज नॉट इन प्योर नेचर। वो प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, लाइक कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, बहुत सारे अलग तरह के सोल्ट्स भी हैं। तो हमें क्या है, उसको अलग अलग प्रोसीजर लगा के उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। देन वी कैन यूज इट एज आर डिफरेंट पर्पसेस विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। एक ये तो हुआ हमारे पास कॉमन सोल्ट जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसके साथ हमारे पास क्या होता है, एक ब्लैक सोल्ट भी आता है जिसको हम रॉक सोल्ट बोलते हैं। व्हाइट इज ब्लैक इन कलर या ब्राउन इन कलर, ब्राउन सा होता है वो। व्हाइट इज ब्राउन इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड वी आर गेटिंग दिस रॉक सॉल्ट फ्रॉम द बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, एज वी आर गेटिंग द कोल। जैसे हम कोल मिलता है वैसे ही हमें रॉक सॉल्ट मिलता है अर्थ के सरफेस से, ठीक है, अर्थ के अंदर से। सो यस, इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर जो है वो व्हाइट से चेंज होके ब्राउन हो गया है। नाउ डिफरेंट यूजेस ऑफ दिस सॉल्ट। जो ये हमारे पास सोल्ट है, कॉमन सोल्ट, उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर यूजिंग इट एज अ प्रिजर्वेटिव। हम उसको प्रिजर्वेटिव, जैसे हम पिकल वगैरह बनाते हैं तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, किसी भी चीज को काफी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करना है तो वो हम NaCl ही लगाते हैं, हमारा कॉमन सोल्ट ही लगाते हैं। आप कभी भी आइसक्रीम को टेस्ट करते हो, हल्का सा स्टार्टिंग में सोल्टी फ्लेवर आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर नमक लगाया होता है ताकि उसको प्रिजर्व कर सके। सो यस, इस तरह से हम उसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज कर सकते हैं। वी कैन ऐड दिस NaCl एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन आवर फूड। हमारे खाने का जो टेस्ट है, आप विदाउट सोल्ट एक बार खाना बनाइए, एक बार विद सोल्ट खाना बनाइए। विदाउट सोल्ट वाले खाने में आपको कोई टेस्ट ही नहीं आएगा। सो यस, द फ्लेवरिंग एजेंट विच इज प्रेजेंट इन आवर फूड इज सोल्ट। सोल्ट का क्वांटिटी थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यस, ये हमारे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह है। इसके अलावा क्या होता है कि सोल्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है क्योंकि उसके अंदर सोल्ट, सोडियम पोटेशियम पंप आपने बायो में पढ़ा होगा या फिर हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। तो ये उसको एक्टिवेट करने के लिए सोडियम आयंस चाहिए। सोडियम आयंस बेसिकली कहाँ से आते हैं, हमारे पास सोल्ट से आते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, हमारी मसल की फंक्शनिंग के लिए, हमारे जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, इट इज सिक्रेटेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड, दिस सोल्ट। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं इस कॉमन सोल्ट के, ठीक है। हमारे पास सिर्फ यही फंक्शन नहीं है। एक्चुअली दिस कॉमन सोल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर सोल्ट टू। ये हमें अलग अलग सोल्ट्स बनाने में भी हेल्प करता है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इससे बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म द washing soda, we can form baking soda. So different kinds of chemicals we can form by the help of this common salt in different kinds of industries. So these topic we are going to discuss tomorrow in our tomorrow's class. But in today's class this is the topic, common salt तक ही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने पढ़ा बेसिकली सोल्ट क्या होते हैं और उसमें से एक टाइप ऑफ सोल्ट कॉमन सोल्ट हमने पढ़ा। सो ये स्टूडेंट कीप प्रैक्टिसिंग। ये आप जितना लिखकर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये जो सोल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से।
इस सोल्ट वाले टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलता है, वो किसी भी सोल्ट पे आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है। तो बेसिकली दोज मतलब हु आर अनेबल टू लर्न द होल चैप्टर, जो पूरा चैप्टर याद नहीं कर सकते हैं, आई विल सजेस्ट देम कि एटलीस्ट लर्न दिस सोल्ट टॉपिक। सोल्ट टॉपिक तो जरूर करें। एक मैंने वहां पे कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया था जो CO2 इवेपोरेशन वाला था, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की कलर, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके अलावा सिर्फ सोल्ट वाला टॉपिक जरूर पढ़ ले, और जो अच्छे बच्चे हैं ऑब्वियसली उन्हें तो सारा चैप्टर ही पढ़ना है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।